Hello, dear students. This is Ikhlaq sir, physics. So, my dear students, I am back with lecture number 7 on NLM. Okay. और आपको तो पता है we are studying motion of connected bodies, ठीक है ना? And this is our example number 6. We are done example number 5. So let's get started and start with the example number 6, a beautiful example in NLM. Okay. So it's like this. देखो बेटा, concentrate here. How many blocks are there? There are 2 blocks. This is for example block A, and this is block B. यहाँ बेटा block A and this is block B. This is A, this is block B. Okay. Now see that. पहले सबसे पहले आप using your common sense आप मुझे ये बताइए बेटा, जो ये block A है या block B है, in what direction they will accelerate. Okay. So obviously the block B, because of a component of weight, it will accelerate in the downward direction. So it will accelerate down the inclined plane. ठीक है बेटा. और जो block A है, it will accelerate in the forward direction. ये आगे की दिशा में एक्सेलरेट करेगा. एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी सेम. व्हाई? द रीजन इज दैट दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग. ऑलराइट. तो देख लो बेटा, यहां से लेकर यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, तो इसमें आप टेंशन मान लो बेटा दैट्स इक्वल टू टी, और यहां पे टेंशन मान लो बेटा दैट्स इक्वल टू टी. ठीक है बेटा, द टेंशन स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू टी. ठीक. अब इसमें देख लो कौन सा है चलाने वाला फोर्स. द कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ दिस दैट्स इक्वल टू what mg sin theta which is equal to 6 into g into sin 30 degree. ठीक है बेटा. ओके. 6 into 10 is 60, sin 30 होता है बेटा 1/2, 60 divided by 2, this comes out to be 30 न्यूटन. नाउ दिस 30 न्यूटन क्या है बेटा, ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा चलाने वाला फोर्स. क्या कोई रोकने वाला फोर्स है? Not at all. The reason is that we assume that all the surfaces are smooth, they are frictionless surfaces. तो यहाँ पे force of friction 0 होगा, यहाँ पर भी force of friction 0 होगा. So what we have to calculate is this. We are supposed to calculate the acceleration and the tension. So A part that we have to calculate acceleration, which will be equal to CWF चलाने वाला force minus RWF रोकने वाला force divided by the total mass of the system. ओके. तो बोलो बेटा इसमें कितने फोर्स हैं? दो. सिर्फ एक फोर्स है बेटा, कौन सा? 30 न्यूटन. तो क्या लिखेंगे? दैट्स इक्वल टू 30 माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल इज 10. 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. 30/10, तो आंसर आएगा बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और ऑफ द ब्लॉक ए एंड द ब्लॉक बी. ठीक. अब नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट यू आर सपोज टू कैलकुलेट व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. Now, कल भी मैंने आपको बोला था बेटा, if you want to calculate tension in the string, what you will have to do is that construct free body diagram for one of the 2 blocks. Okay? तो हमारे पास यहाँ पे 2 blocks हैं. Let me construct free body diagram for the block A. This is our block A. तो इस block A का मास क्या है बेटा? That's equal to 4 kg. What about acceleration? That is equal to A. ठीक है बेटा. ओके. तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट लिखेंगे? That F is equal to M multiplied by A. ठीक है. So there's only one force and that's equal to T. तो क्या लिखेंगे बेटा? T is equal to, what about the acceleration is equal to what? That's equal to 3. So mass is 4. 4 into 3 is equal to 12. So the tension in the string comes out to be 12 Newton. That comes out to be what? 12 Newton. This is the tension in the string. All right. ठीक है ना बेटा. अगर आपको अब यहाँ पे फोर्स ऑन पुली निकालना होगा, so you can calculate that as well. ठीक. सो लाइक दिस, ये वाला एंगल है बेटा 30, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 90. अगर ये 90 डिग्री होगा, बोलो बेटा ये एंगल किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 60. ऑल राइट. सो व्हेन दिस एंगल इज इक्वल टू 60, द नेट फोर्स ऑन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? लेट मी यूज अनदर पेन हियर. द नेट फोर्स जो यहाँ पे होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई टी. तो वो इस दिशा में होगा. दिस इज √3 मल्टीप्लाइड बाई टी. Clear? And again here it is. यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, आप concentrate here. So the tension string is T, angle is 90. इस पुल्ली पे जो फोर्स होगा that will be equal to √2 multiplied by T, and T we have calculated that is 12 Newton. Okay, so ये वाला फोर्स होगा, suppose this is pulley 1 and this is pulley number 2. So here I will write down the force on the pulley 1 will be equal to what? That will be equal to √3 into T, which is 12 under √3 Newton. And the force on the second pulley will be equal to what? √2 into T, which comes out to be 12 √2 Newton. ठीक है बेटा. So we are done with the problem. Okay, we have calculated what? We have calculated the acceleration of the system,
which comes out to be what acceleration comes out to be, that is 3 meter per second square. And next we have to calculate tension in the string, and next we have to calculate the force on the pulley. ठीक है बेटा, again let me revise it quickly. ठीक है बेटा, तो in these very examples, that is motion of connected bodies, what you are supposed to calculate is, number one, you will have to calculate the acceleration, and number second is that you will have to calculate the tension. तो कल भी मैंने आपको बोला था बेटा, first and foremost identify which force is the driving force and identify which force is opposite to the direction of acceleration. One force will become चलाने वाला force, another force will become रोकने वाला force. Acceleration will be equal to चलाने वाला force minus रोकने वाला force divided by total mass. That's it, the problem is done. ठीक है बेटा. Next, if you want to calculate tension in a string, construct free body diagram for one of the two blocks. Apply F equal to ma, calculate tension in the string. Then easily you can calculate what's the force on the pulley. अब आप देख लो बेटा next. देख लो बेटा next ये है. This question has been asked in the JEE Man 2022. Okay, the question is like this: if the system is at rest, so that means the system is in equilibrium, the net force on the system will be equal to what? That will be equal to 0. Calculate force exerted by the inclined plane on M1. Try to understand the problem. Try to understand the problem. We are supposed to calculate what's the force exerted by the inclined plane on the M1. So that means we have to calculate what? Normal reaction. Because the force exerted by the inclined plane on the block, or the force exerted by the block on the inclined plane, will be equal and opposite, and that will be normal reaction. आपको पता होगा बेटा यहाँ पे जो normal reaction होता है, that's equal to mg cos theta. So that is simply equal to what? 5g cos theta. That means we have to calculate 5g cos theta. ठीक है? So easily we can calculate 5g cos theta. अगर आपके पास theta पता हो, तो यहाँ पे हमें theta का value नहीं पता है. We don't know the value of theta. Alright, so let's try to calculate the value of theta, then put that value of theta here, and we will be able to calculate what? Normal reaction. ठीक है ना? That's the way. Okay, तो देख लो बेटा, the system is at rest. That means what about the acceleration of the system? That's equal to 0. What is the acceleration of system? That's equal to 0. When acceleration of the system is equal to 0, what does that mean? That means the चलाने वाला force will be equal to what? रोकने वाला force. सही है ना बेटा? चलाने वाला force will be equal to what? रोकने वाला force. नीचे की दिशा में एक force होगा बेटा, weight, that is 3g, which is equal to 30 Newton. Let's suppose this is चलाने वाला force. ठीक है बेटा? इस दिशा में एक force होगा, that will be the component of this. And what is this? That is 5g into sine theta. 5g into sine theta. Now obviously this 5g sine theta, which is equal to what? That's equal to 50 into sine theta. ठीक है? So that will be equal to this 30 Newton. ठीक है? So चलाने वाला force हम लेंगे बेटा 30 Newton, and रोकने वाला force कितना लेंगे बेटा? That's equal to 50 into sine theta. ठीक? Okay, 0 and 0 will cancel. तो यहाँ से जो sine theta निकला, that is equal to 3 divided by 5. अगर sin थीटा निकला 3 divided by 5, इसका मतलब क्या है बेटा? थीटा किसके बराबर होगा? That will be equal to 37 degree. So theta comes out to be 37 degree. Is that clear to you? Now next what we are supposed to calculate is the normal reaction on the M1, which is equal to 5g cos theta. सही है बेटा? So it is 5 multiplied by g is 10 multiplied by cos 37 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा? 4 divided by 5. This 5 and 5 is going to cancel. जो आंसर इसका निकलेगा वो होगा बेटा 40 Newton will be the answer to this question. That's it, the problem is done. ठीक है बेटा? Okay, so simply what we have done is this. First and foremost, normal reaction is equal to 5g cos theta, and we are supposed to calculate this. ठीक? Now acceleration is equal to 0. What does that mean? That means चलाने वाला force will be equal to रोकने वाला force. So that means this 30 will be equal to this 50 into sin theta. Theta निकला 37 degree. Normal reaction इसके बराबर होगा. So quickly we have done this question. ठीक है ना बेटा? Okay, let's switch to another example. देख लो बेटा next question क्या है? Very important question. Atwood's machine. ठीक है बेटा? अगर मैं exaggerate ना करूं तो कम से कम at least this question has been asked at least 6-7 times in the NEET plus JEE Maths. Okay, ठीक है ना बेटा? So concentrate here. First and foremost, what we are supposed to calculate. This is Atwood's machine, which is a system of two blocks. Here it is A, and here it is B, and here we have a pulley which is massless and frictionless. There is string which connects the two blocks. जो string है that is inextensible, that is frictionless, that is massless. All right. What we are supposed to calculate A part acceleration of the blocks, and B parts that we have to calculate tension in the string. ठीक है बेटा? First and foremost, what we will do is this. We will do proper physics. We'll do proper physics, and we will try to calculate what? The acceleration, and we'll try to calculate the value of tension. Then I will do a shortcut trick.
जिससे ये होगा बेटा, आपने एटवुड्स मशीन देख ली, यू कैन डू दैट प्रॉब्लम ऑर्ली, यू कैन डू दैट प्रॉब्लम ऑर्ली सिंपली। ठीक है बेटा, तो देख लो बेटा, कॉन्सेंट्रेट हियर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। लेट्स एज्यूम दैट दिस m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1। जब ये m2 ग्रेटर देन m1 होगा तो इसका मतलब ये होगा बेटा, दिस विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a एंड दिस ब्लॉक विल एक्सेलरेट अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a। सही है बेटा, ओके। नाउ आइडेंटिफाई दिस, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ब्लॉक b। बोलो बेटा, इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस हैं? इस पर दो फोर्स है। कौन कौन सा फोर्स? ऊपर की दिशा में टेंशन होगा, नीचे की दिशा में इसका वेट होगा, दैट्स इक्वल टू m2 into g। सही है बेटा, यहां पे ऊपर की दिशा में टेंशन होगा, नीचे की दिशा में इसका वेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू m1g। ठीक है। नाउ दैट फोर्स इज टेकन एज चलाने वाला फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सो दिस फोर्स बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स ए चलाने वाला फोर्स। और ये वाला फोर्स क्या बनेगा बेटा? इट बिकम्स ए रोकने वाला फोर्स। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एक्सेलरेशन। लेट मी राइट इट डाउन हियर, इट्स इक्वल टू चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन जो निकला दैट्स इक्वल टू, व्हाट इज द चलाने वाला फोर्स? दैट्स इक्वल टू m2g। ठीक है बेटा, m2g माइनस रोकने वाला फोर्स m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास, व्हाट्स दैट? दैट्स इक्वल टू m1 प्लस m2। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय व्हाट? m1 प्लस m2। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, okay। And in the short I will write down like this, that's acceleration जो है बेटा, acceleration of the blocks in the Atwood's machine is equal to this, it is equal to d divided by s multiplied by g। अब आप बोलोगे सर ये d क्या है और ये s क्या है? This d is the difference of the masses, the bigger mass minus the smaller mass, and s is the sum of the masses, the bigger mass plus the smaller mass। So m2 minus m1 divided by m1 plus m2, that is difference divided by sum multiplied by acceleration due to gravity। ठीक है बेटा, this equation it is easy to memorize, तो आराम से आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। b part is that you will have to calculate the tension in the string। Now in order to calculate tension in string, वो मैंने आपको कल भी बोला है बेटा, if you want to calculate tension string, what you will have to do is that you will have to construct free body diagram for one of the two blocks। ठीक है बेटा, तो मान लो बेटा, suppose that there is block, what is that block? Let's take this block m1 और block m2, एक ही बात है। Let me take block m1। बोलो बेटा, ऊपर की दिशा में कितना फोर्स है? That's equal to t। Accelerate upwards, so it is equal to acceleration a। and नीचे की दिशा में कौन सा फोर्स है बेटा? That's equal to m1 multiplied by g। Alright, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? F is equal to mass into acceleration। ठीक है, विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बोलो बेटा, इस पे कितने फोर्स हैं? सर इस पे दो फोर्स है। कौन कौन सा? टेंशन एंड वेट। कौन सा फोर्स है विच इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन? सर वो टेंशन है। सो टी ये वाला नेगेटिव लेंगे, माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाई g इज इक्वल टू व्हाट? इसका मास क्या है? m1 मल्टीप्लाइड बाई a। तो बोलो बेटा, टेंशन कितना निकलेगा? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? m1 into a प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई g। सही है बेटा, अब आप इस a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस m1 into m2 divided by m1 plus m2 multiplied by acceleration due to gravity which is equal to g। ठीक है बेटा, आपको सिंपली क्या करना है बेटा? a के बदले ये लिखना है m2 minus m1 divided by m1 plus m2 and do the cross multiplication, the answer will be finally this, that this tension is equal to this। ठीक है बेटा, अब now finally here it is। इसमें अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा बेटा? दैट विल बी d डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाइड बाय g, वेयर d इज द डिफरेंस ऑफ द मासेस एंड s इज द सम ऑफ द मासेस एंड g क्या है बेटा? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलराइट, तो t आपको निकालना है। टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू ट्वाइस m1 into m2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तो यहाँ पे p लिखेंगे बेटा। m1 प्लस m2 का मतलब सम ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय g। ठीक है बेटा, सो जस्ट मेमोराइज दीज टू इक्वेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस इजीली वी कैन डू अ क्वेश्चन एंड दैट टू ऑरली विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो आपने क्या याद रखा इन एटवुड्स मशीन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d by s into g and tension is equal to 2 times p by s into g। ऑलराइट, where p is product, d is difference and s is sum of the masses। सही है बेटा, ओके। अब देख लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's do an example on this on the Atwood's machine। Let's do a couple of examples on the Atwood's machine। ठीक है बेटा, now you can do this example easily। देख लो बेटा, this is Atwood's machine, this is a pulley and these are two blocks which are connected with the help of a string। All right,
तो ये मास मान लो बेटा, फॉर एग्जांपल दिस मास इज गिवन टू इट्स इक्वल टू 8 kg and this mass is 2 kg. Obviously this will accelerate downwards and this will accelerate upwards. Tension in the string will be equal to T. What we are supposed to calculate A and T. This is a practice example. We have to calculate what? Acceleration and tension. All right, don't construct free body diagrams, don't write down anything elaborate, so simply write down this. A is equal to D by S multiplied by G. D का मतलब difference of the masses is 8 minus 2. Sum of masses 8 plus 2. G किसके बराबर? G के बदले लिखेंगे बेटा 10. 10 and 10 is going to cancel. 8 minus 2 comes out to be 6 meter per second square. With no time you can solve this question. ठीक है ना बेटा। अब इसके लिए मैंने क्यों लिखा d by s and 2p by s into g, because this is a very important problem. That's the reason. This is standard question. Okay. The next is that you have to calculate t. तो t कैसे calculate करोगे? 2p by s multiplied by g. All right. तो 2, what is the product of the masses? That is 2 multiplied by 8. सही है? Divided by what is the sum? That is 2 plus 8. What about acceleration due to gravity? That's equal to 10. 2 plus 8 is 10. 10 and 10 will cancel. 8 into 2 is 16. 16 into 2 is 32. तो आंसर इसका आएगा बेटा 32. क्या हमने कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाया? No sir. Simply directly we have used this equation and easily we can calculate what's the tension string and what is the acceleration of the blocks. You want one more example? Let's do one more example. देख लो बेटा, एटवुड्स मशीन पे फिर से एक और क्वेश्चन like this it is. This is a pulley. These are 2 blocks. This is 1 block. ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक है बेटा, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस मास एज 7 kg. लेट्स टेक दिस मास एज 3 kg. यू वांट कैलकुलेट एक्सेलरेशन। देखो बेटा orally कैसे कर सकते हैं। डिफरेंस इज 7 minus 3. व्हाट्स दैट? 4. सम इज 7 plus 3. व्हाट्स दैट? 10 multiplied by g. 10 and g will cancel. 4 इसका आंसर आएगा। So देख लो, acceleration is equal d by s multiplied by g. What's the difference of the masses? 7 minus 3. Sum of masses 7 plus 3. Acceleration due to gravity 10. 10 and 10 is going to cancel. 7 minus 3 is 4 meter per second square. With no time we have done this. Tension देख लो बेटा, that's equal to twice 2p by s multiplied by g. देखो बेटा 2 into product of the masses what? That is 7 into 3. सही है बेटा, divide by sum of masses 7 plus 3. Acceleration due to gravity we take that as 10 meter per second square. Clear? 7 plus 3 is 10. 10 and 10 it will cancel. 7 3s are 21 into 2 is 42 Newton. With no time we have done this question. ठीक है बेटा। अब लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमें करना है बेटा, देख लो। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द नीट 2020। तो सेम एटवुड्स मशीन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एंड सेम डेटा. This is acceleration A, this is acceleration A. What we are supposed to calculate is the acceleration. Let's calculate both. We are supposed to calculate what? Acceleration, and we will try to calculate the value of tension as well. लेकिन जो नीट 2020 में क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ आपको क्या निकालना था? एक्सेलरेशन ओनली. लेट्स डू इट. तो देख लो बेटा, एक्सेलरेशन इन द एटवुड्स मशीन किसके बराबर होता है? d डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाइड बाय g. व्हाट इज d इक्वल टू? दैट इज 6 minus 4. What is sum equal to? 6 plus 4. What about acceleration due to gravity? 10. 10 and 10 will cancel. 6 minus 4 comes out to be 2 meter per second square. Okay, with no time we have done this. What about the tension string? Tension किसके बराबर होता है बेटा? 2p by s multiplied by g. That is 2. What about the product of the masses? That is equal to 6 into 4 divided by sum is 6 plus 4. Acceleration due to gravity किसके बराबर है? 10. This 10 and this 10 will cancel. 6 4s are 24. 24 into 2 is 48 Newton. ठीक है बेटा, लेकिन आपको सिर्फ ये निकालना था. We have calculated both acceleration as well as the tension in the string. That too with no time. ठीक. Let's see another example. देख लो बेटा, और एक example है. This question has been asked in JEE Man 2024. And that too twice, in the January paper as well as April. Get what? चल रहा है. Okay, so this question, जो ये वाला question है बेटा, this has been asked twice in JEE Man 2024. Number 1 in January and number 2 in April. Okay. The acceleration is given to you. What's that? That's equal to g divided by 8. You are supposed to calculate the ratio of the two masses. That is, you will have to calculate what is the value of m2 is to m1. So again we'll use same equation for the acceleration. बताइए आप acceleration किसके बराबर होता है in the Atwood's machine? d by s multiplied by g.
Okay, what is this d by s? D means that m2 minus m1, sum means m2 plus m1 multiplied by acceleration due to gravity. What is that? That's equal to g. Okay, now acceleration is given to us. What is that? That's equal to g divided by 8. So let me write it. It is equal to g divided by 8. First and foremost, this g and g will cancel, then go for the cross multiplication. So it will be 8 into m2, yes or no, 8 into m1, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, so it is m2 plus m1. Let's find the relation between the m2 and m1. देख लो बेटा, m2 यहाँ जाएगा, 8m2 minus m2 बनेगा बेटा 7m2, सही है। 8 वहां जाएगा, बनेगा बेटा प्लस, so 8 plus 1 is 9, तो बनेगा बेटा 9 times m1. What we have to calculate? m2 divided by m1. We are done with the problem. m2 divided by m1 is 9 divided by 7. आंसर है इसका 9:7. That's it. The problem is done with no time. That too, जो ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया है और 2 बार आया है, जनवरी में भी और अप्रैल में भी. ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. देख लो बेटा, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन 2022 जुलाई. तो मैंने बोला एडवर्ड्स मशीन इज कंटिन्यूअस आस्क्ड एवरी नाउ एंड देन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है, इफ m2 is 2 times m1, acceleration is a1. If m2 is 3 times m1, acceleration is a2. Calculate a1 by a2. कौन सी इक्वेशन सर यूज करेंगे? वही इक्वेशन, acceleration is d by s multiplied by g. You can easily do it. ठीक है ना? तो देख लो बेटा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? इन द केस फर्स्ट विल टेक दिस m1 is equal to m. तो इसका मतलब जो m2 होगा that will be equal to twice m because it is 2 times. ठीक है ना? लेट मी कैलकुलेट a1. a1 किसके बराबर आएगा बेटा? d by s multiplied by g. बताइए आप डिफरेंस इन दो का. 2m minus m is m, सम 2m plus m is 3m multiplied by g. मुझे लग रहा है बेटा g by 3 आंसर निकलेगा, सही है ना? नाउ लेट्स कैलकुलेट a2. अब देख लो बेटा, नाउ m1 लेट्स टेक इट m, तो जो m2 होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? m1 is m, m2 जो है बेटा दैट्स इक्वल टू व्हाट? दैट्स इक्वल टू 3m. दैट्स इक्वल टू 3m. अगेन एक्सेलरेशन a2 किसके बराबर आएगा बेटा? d डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाइड बाय g. क्लियर? आप देख लो बेटा, 3m minus m comes out to be 2m. सम 3m plus m comes out to be 4m multiplied by g. तो ये आएगा बेटा g डिवाइडेड बाय 2. isn't it? इजी है बेटा. so that's why this d by s multiplied by g is very handy. अब आपको क्या निकालना बेटा? a1 डिवाइड बाय a2. सो कैलकुलेट a1 बाय a2. बोलो बेटा, इस a1 के बदले हम क्या लिखेंगे? g by 3 लिखेंगे, शाबाश. a2 के बदले क्या लिखेंगे बेटा? इसका रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाय g. g and g will go to hell. तो यहां बचेगा बेटा 2 by 3. सो आंसर इज 2:3. सो दैट मींस a1 is to a2 is equal to 2:3. ठीक है ना बेटा? है ना? जो ये वाली टेक्निक है बेटा, दिस d by s multiplied by g, इट्स वेरी हैंडी. आप यहाँ कह सकते हो बेटा दिस इज IRS ट्रिक, IRS स्पेशल ट्रिक टू डू दिस एडवर्ड्स मशीन. ठीक है ना बेटा? तो आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेन 2022. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. देख लो बेटा, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय एमएस 2018 और कैलकुलेट सिर्फ क्या करना था बेटा? एक्सेलरेशन. देख लो बेटा, orally you can do it. If you follow my technique, just orally you can do it. देख लो, चलाने वाला फोर्स है बेटा, इसका वेट 6 × 60. यस और नो? टोटल मास कितना है? 6 + 4 = 10. 60 डिवाइड बाय 10 आंसर आएगा 6. ओके, तो इसमें 10 सेकंड भी नहीं लगता है बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो सिंपल क्या करना है बेटा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. कौन सा बेटा चलाने वाला फोर्स? इसका वेट कितना है? 60 है. क्या कोई रोकने वाला फोर्स है? नहीं सर, कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है. टोटल मास कितना है बेटा? 10. 60 by 10 का मतलब भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑरली भी कर सकते हो. बी पार्ट, हमें एक्सेलरेशन निकालना है. लेट्स कैलकुलेट टेंशन एज वेल. ठीक है ना बेटा? टेंशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो एमएस 2018 में क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ आपको एक्सेलरेशन निकालना था. बट वी कैन कैलकुलेट टेंशन एज वेल. इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम देख लो. मास कौन सा? 4 kg. इसकी एक्सेलरेशन क्या हमने कैलकुलेट की? हाँ कैलकुलेट की. किसके बराबर? 6. इस पे कौन सा फोर्स है? T है. क्या लगाएंगे इस पे? F इक्वल टू मां. मेरे पास मां है, F इक्वल टू मां. तो कौन सा फोर्स इस पे है बेटा?
T। बोलो बेटा इसका मान 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 न्यूटन निकला इसका आंसर। आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, एम्स 2018 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट देख लो बेटा अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज डबल इंक्लाइनेड प्लेन। ये भी 2-3 बार जेईई मेंस में आया है बेटा, डबल इंक्लाइनेड प्लेन। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट हियर, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आराम से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा, है क्या ये प्रॉब्लम। दिस इज अ पुली, यहां पे एक ब्लॉक है बेटा, ठीक है ना, यहां से दूसरा ब्लॉक है, इट्स लाइक दिस। ओके, अब इसका मास मान लो बेटा दैट्स इक्वल 6 kg, इसका मास मान लो बेटा दैट्स इक्वल टू 4 kg। दिस इज ए, दिस इज बी। फिर जो इस पे क्वेश्चन आए हैं बेटा अभी तक, वो भी हम यहाँ पे करेंगे, 6 and 4। ऑलराइट, सो जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस, डोंट यूज एनी फिजिक्स, यूज योर कॉमन सेंस। आप मुझे ये बताइए इन दो में से कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा और कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, बस ये आप मुझे बताइए, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा और कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा। दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ये तो इजी है, यहाँ तो 6 है, यहाँ तो 4 है, तो इस दिशा में जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा और इस दिशा में जो फोर्स होगा वो कम होगा। तो ऑब्वियसली 6 किलोग्राम विल एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइनेड प्लेन एंड 4 kg विल एक्सेलरेट अप द इंक्लाइनेड प्लेन। सही है ना बेटा, क्लियर और नॉट। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई विल डू इज दिस, हम कैलकुलेट क्या करेंगे बेटा, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट ए पार्ट तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन, बी पार्ट दैट वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन अगर नीट में जेईई में क्वेश्चन आएगा तो या तो आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा या तो आपको टेंशन निकालना होगा, दोनों नहीं निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई विल डू इज दिस, आई विल कैलकुलेट व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट अलोंग दिस डायरेक्शन। ये है 6, इस दिशा में होगा बेटा 6 इंटू जी इंटू साइन 53, सही है बेटा, और इस दिशा में होगा बेटा 4 इंटू जी इंटू साइन 37। क्लियर हो गया। देख लो बेटा साइन 53 किसके बराबर है, हाँ, तो ये जो है बेटा ये वाला फोर्स ये बनेगा बेटा चलाने वाला फोर्स, और ये फोर्स क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा रोकने वाला फोर्स। क्या बनेगा बेटा, रोकने वाला फोर्स। नाउ लेट मी राइट इट हियर, देख लो बेटा चलाने वाला फोर्स कितना है, दैट इज इक्वल टू 6g। सो 6g के बदले 10, साइन 53 किसके बराबर होता है, 4/5 के बराबर होता है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 6 जार 12, 12 इंटू 4 ये आएगा बेटा 48 न्यूटन। सही है। रोकने वाला फोर्स कितना बनेगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू जी के बदले 10, साइन 37 होता है बेटा 3/5। 5 1 5 2, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24 न्यूटन। क्लियर बेटा। तो देखो 24 न्यूटन इज छोटा फोर्स, 48 न्यूटन बड़ा फोर्स, तो बड़ा फोर्स बनेगा चलाने वाला फोर्स। तो आपको क्या निकालना बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। हाँ बताइए आप इसमें चलाने वाला फोर्स कितना है बेटा, दैट इज 48 माइनस 24, तो वो आएगा बेटा 24। टोटल मास है बेटा 6 + 4 10, तो आंसर निकला बेटा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। यस और नो, क्लियर हो गया बेटा। तो ये निकला एक्सेलरेशन। लेट्स कैलकुलेट नेक्स्ट दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहां से टेंशन है बेटा T और यहां से भी T। अब यहां पे क्या करोगे बेटा, काम आप लगाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या लगाओगे बेटा, फ्री बॉडी। क्या सर इसके लिए या इसके लिए, योर चॉइस, आप इसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम लगा सकते हो या इसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम लगा सकते हो। तो देख लो बेटा, लेट्स कंस्ट्रक्ट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 4 kg। तो ये है बेटा 4 kg। हाँ बताइए इस पे कितने फोर्सेस हैं, इस दिशा में एक फोर्स है T जो हमें निकालना है, इस दिशा में एक फोर्स है बेटा वो है रोकने वाला फोर्स, और रोकने वाला फोर्स कितना निकला 24 न्यूटन। सो दिस इज 24 न्यूटन, और ये एक्सेलरेट इस दिशा में कर रहा है ऐसे, वो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, दैट्स इक्वल टू 2.4। लेट्स राइट डाउन F इक्वल टू मा। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास मा है, F इक्वल टू मा। बोलो बेटा कितने फोर्स है यहाँ पे, 2 है। कौन कौन सा, T and 24। हमने लिखा T - 24 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर है बेटा, दैट इज 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 4 जार 16, 4 2 जार 8, मेरे हिसाब से 9.6 आना चाहिए बेटा। तो T कितना निकलेगा, T निकलेगा बेटा 24 प्लस 9.6, तो वो आएगा बेटा 24 प्लस 9 क्या होता है बेटा, दैट इज 33। तो आंसर आएगा बेटा 33.6 न्यूटन। तो ये निकला बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है ना बेटा। तो फिर से जो इसका प्रोसीजर है बेटा, दैट्स एग्जैक्टली सेम, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट, दैट इज सेम।
ठीक है ना। तो हमने कैलकुलेट क्या किया, एक्सेलरेशन, एंड देन वी हैव कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द जेईई मेन 2023। तो क्वेश्चन फिर से सेम बेटा, यू आर सपोज कैलकुलेट व्हाट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देख लो बेटा हाउ वी कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो बेटा हाउ वी कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, तो अगेन फिर से देख लो बेटा, ये वाला फोर्स देख लो बेटा, 4 kg इज ग्रेटर देन 1 kg। व्हाट डज दैट मीन, ये नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है बेटा, ऑलराइट, सो दिस विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स। बोलो बेटा इस दिशा में कौन सा फोर्स होगा, 4g sin 60, यस और नो, 4g sin 60। ठीक है बेटा, इस दिशा में क्या होगा बेटा, 1g sin 30, sin 60 इज √3/2, तो ये आएगा बेटा, दिस इज 40, दैट इज 20 √3 आएगा बेटा ये। दिस विल बी इक्वल g/2, तो ये आएगा बेटा 10। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा चलाने वाला और ये बनेगा रोकने वाला। तो यहां पे ये है बेटा चलाने वाला फोर्स और ये क्या है बेटा, दिस इज रोकने वाला फोर्स। लेट्स कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या निकला बेटा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। हाँ बोलो बेटा एक्सेलरेशन क्या निकला, व्हाट इज चलाने वाला फोर्स इक्वल टू, दैट इज 20 √3 माइनस 10, टोटल मास कितना है बेटा 5। तो एक्सेलरेशन आएगा बेटा 5.154, 5.152, तो ये आएगा एक्सेलरेशन 4 √3 माइनस 2। ठीक है बेटा, तो ये निकला एक्सेलरेशन। अब आपको टेंशन निकालना बेटा, तो टेंशन इसके लिए आप निकाल सकते हो बेटा, यहां से टेंशन है T इस ब्लॉक के लिए। तो इस ब्लॉक के लिए क्या लगाएंगे बेटा, F इक्वल टू M इंटू ए, दिस और बी पार्ट, F इक्वल टू M इंटू ए। इस पे कितने फोर्स है बेटा, 2, कौन कौन सा, T पॉजिटिव लेंगे, 10 नेगेटिव लेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन 1, एक्सेलरेशन निकला बेटा ये 1 इंटू दिस इज इक्वल टू 4 √3 माइनस 2, यस और नो। तो 10 वहां जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा 4 √3 माइनस 2 प्लस 10, 10 माइनस 2 होता है बेटा 8 हमारे हिसाब से, आपके भी हिसाब से वही होना चाहिए बेटा, 4 √3 प्लस 8 इसका आंसर आएगा। दैट्स इट, द प्रॉब्लम इज डन। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए बेटा, जो ये जेईई मेन का क्वेश्चन है खिलौने लगते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि टेक्निक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, देख लो बेटा, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ओके, तो देख लो अगेन डबल इंक्लाइन प्लेन, लेकिन क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कैपिटल एम एंड स्मॉल एम सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर है सर, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर है तो चलाने वाला फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, रोकने वाला फोर्स। द प्रॉब्लम इज डन। इस दिशा में ये मान लो बेटा, दिस इज रोकने वाला फोर्स mg sin θ2। हाँ सर ये सही है। इस दिशा में बनेगा बेटा चलाने वाला फोर्स mg sin θ1, सर ये भी सही है। तो ये है बेटा चलाने वाला फोर्स, क्या है बेटा, ये चलाने वाला फोर्स, और ये क्या है बेटा, दिस इज रोकने वाला फोर्स। दोनों फोर्सेस सेम होंगे, तो यहां लिखेंगे बेटा चलाने वाला फोर्स इक्वल टू रोकने वाला फोर्स। द प्रॉब्लम इज डन। तो इक्वेशन बनेगी बेटा mg sin θ1 इक्वल टू mg sin θ2। ठीक है ना बेटा, सही बात है ना बेटा। ओके, सो वी आर डन दिस क्वेश्चन। ठीक, ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। दिस इज अनदर क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन 2024। लेट दिस बी द लास्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट दिस बी द लास्ट प्रॉब्लम। आपको क्या निकालना बेटा, m1/m2, इजी प्रॉब्लम है, कोई इसमें मसला नहीं है। IR स्ट्रिक यूज कर लो बेटा, d/s इंटू g, कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बेटा। d मतलब m2 इज ग्रेटर देन m1, तो m2 माइनस m1, हाँ सही है बेटा, डिवाइडेड बाय सम m2 प्लस m1। एक्सेलरेशन वही से दिया गया है इंटू g, एक्सेलरेशन दिया गया है इज इक्वल टू g/√2। g ने g को मार दिया, √2 यहां जाएगा, √2 इंटू m2, √2 इंटू m1, m2 प्लस m1। देखो कैसे खेल रहे बेटा प्रॉब्लम्स के साथ हम। m1/m2 निकालना है ना, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, √2 m2 माइनस m2 m1 प्लस √2 m1, यहां से m1 कॉमन, यहां से m2 कॉमन, m1/m2 निकालना है ना, m2 √2 माइनस 1, m1 √2 प्लस 1,
क्वेश्चन आया बेटा, आंसर आया बेटा m1/m2 किसके बराबर, m1/m2 √2 - 1 √2 + 1, ये निकला इसका आंसर। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया? तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। जस्ट टेक्निक याद रख लो तो किसी भी क्वेश्चन को आप फोड़ सकते हो, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस, सो सी यू टुमारो विद अनदर फैसिनेटिंग लेक्चर इन द फिजिक्स। ओके, तो सी यू टुमारो।